Today we are going to start lesson 1 of social studies. Let's start the reading. It's geography section, chapter 1, our country in the world. The map below shows the continents of Europe, Asia and Africa. We have almost studied all the important maps of this lesson in previous lecture. We will discuss again the important maps. Pakistan is strategically located as a link between the Islamic bloc to the west and north, and the South Asian countries to the east. Pakistan creates a link between Islamic bloc. I'll show you Islamic bloc on the map to the west and north, and the South Asian countries to the east. Pakistan creates a link between these parts of Islamic countries. Also note the location of Saudi Arabia in relation to the Islamic countries around it. What does this explain about the spread of Islam? Let's see the map. In this map, you can see three different continents. Asia is roughly somewhere here. This is Africa and this is Europe. This is Asia, Africa and Europe. All this green area is called Islamic bloc. This part, Pakistan is located over here. This side is west of Pakistan. This is north of Pakistan and this is east side of Pakistan. So all these are Islamic countries, Islamic bloc of Muslim countries, and these are also some Islamic countries. Pakistan creates a link between these Islamic countries. Now let's see the location of Saudi Arabia. Here is Saudi Arabia. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा इस्लामिक एरिया है, ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, दे आर अराउंड और नियर सऊदी अरेबिया लाइक दिस. इट्स बिकॉज सऊदी अरेबिया इज़ सेंटर ऑफ इस्लाम. इस्लाम यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और उसके बाद जो नियरेस्ट एरियाज़ थे सराउंडिंग्स में वहाँ पे स्प्रेड हुआ. बिकॉज़ उस वक़्त ट्रेंड हुआ करता था ट्रेड का. ट्रेडर्स आते थे अपना सामान लेकर. तो उस वक़्त जो ट्रेडर्स बाहर से इधर आए, सऊदी अरेबिया में आए अपनी सेल करने के लिए चीज़ें, प्रोडक्ट्स, उन्होंने वहाँ से इम्प्रेस हुए इस्लाम से, इस्लाम कबूल किया और उसके बाद वो अपने साथ वापस इस्लाम का कल्चर और ट्रेडिशंस और रूल्स, लॉ, सारा कुछ अपने साथ वापस ले गए और जाकर अपनी कम्युनिटीज़ में उसको शेयर किया. और इस तरह से या फिर ये हुआ कि सऊदी अरेबिया से जो लोग गए उधर सराउंडिंग एरियाज़ में ट्रेड के लिए, उन्होंने वहाँ पर जाकर प्रीचिंग की, इस्लाम की तबलीग की और इस तरह से इस्लाम जो है वो सऊदी अरेबिया की सराउंडिंग्स में फैलता हुआ नज़र आता है. यू कैन सी दैट देयर इज़ नो इस्लामिक कंट्री इन दिस एरिया. अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि इट इज़ यूरोप. ठीक है. अब यूरोप में जो है वो क्रिश्चियनिटी इस एरिया में बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी उस वक़्त, तो इट वाज डिफ़िकल्ट टू फाइट विद देम. तो दूसरा ये भी था कि जो इस एरिया तक पहुंचने के लिए बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स और बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट जो थे उनको क्रॉस करना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल था उन एरियाज़ में जाना. तो यहाँ पर इस्लाम जो है वो नहीं पहुँच सका. ये भी कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ आपको नज़र आ रहे हैं मैप के अंदर. अब हमने इस मैप में टू थिंग्स स्टडी की हैं. एक हमने ये स्टडी किया है कि यहाँ पर 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. क्लियर?
Secondly, this part is north of Pakistan, west of Pakistan. This is north of Pakistan, and this is east of Pakistan, and all these are Islamic countries. ठीक है, Pakistan creates a link between these Islamic countries. Two things. And the third point is the location of Saudi Arabia and spread of Islam. Saudi Arabia is basically center of Islam, and Islam spread outwards from Saudi Arabia through traders or the movement of army. You cannot see Islamic countries in these areas because these were far off areas and it was difficult to reach there. And number two, there was also a powerful resistance by Christianity. Paragraph 2 of your textbook. This map shows the continent and its neighboring countries. We have already discussed this map which showed countries of neighboring countries of Pakistan. There are 4 neighboring countries: India in the east, China in the north, Afghanistan in the northwest, Iran in the west, and Arabian Sea in the south of Pakistan. We have already discussed this map. The continent is largely shut off. Shut off means cut off, separated from the rest of Asia by deserts in the west and by Hindu Kush, Karakoram and Himalaya mountains in the northwest and north. अब पाकिस्तान जो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री बनाता है वो डिफरेंट लैंड फीचर्स पर बेस करती है. आप कुछ जगहों पर देखेंगे कि डेजर्ट्स हैं, कुछ जगहों पर आपको माउंटेन्स नज़र आएंगे लाइक नॉर्थ में, और जो नॉर्थ वेस्ट है उस साइड पर, और जो ईस्ट है उस साइड पर भी आपको डेजर्ट नज़र आएंगे. और जो पाकिस्तान इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अब यहाँ पर आपने ये चीज़ नोट करनी है कि पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ एशिया. ठीक है, कॉन्टिनेंट के साउथ में है बट इन द सब कॉन्टिनेंट. पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. 2 लोकेशंस हैं, ये डिफरेंट हैं, इनको मिक्स नहीं करना आपने. कि जो एशिया की बात है तो पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ एशिया, और जब सब कॉन्टिनेंट की बात है तो पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इट्स important information, you will highlight this. All through history, very important travel routes to and from the rest of Asia have passed through it because of the passes through the mountains. Passes are the natural routes. नेचुरल रास्ते अल्लाह ताला ने, गुज़रगाहें अल्लाह ताला ने पहाड़ों के अंदर, माउंटेन्स के अंदर बनाई हुई हैं, जो अब तो डेवलप हो चुकी हैं. बहुत अच्छे अच्छे रोड्स वहाँ पे बन चुके हैं, बट इन द पास्ट इट वाज वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल थ्रू दीज पासेस. तो ये पाकिस्तान में काफ़ी फेमस पासेस हैं, गोमल, टोची और बुलान पास, खंजराब पास, ये हैबर पास. ये पासेस जो थे वो डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट एरियाज़ की तरफ लेकर जाते थे. इसी तरह से देखिए कि देर आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैवल रूट्स टू एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया. यानी एशिया की तरफ आप जा भी सकते थे और वापस भी आ सकते थे. हैव पास थ्रू इट बिकॉज ऑफ द पासिस थ्रू द माउंटेन्स. इन द वेस्ट द Khyber is in the west of Pakistan, and Bolan Pass it is located in Balochistan, lead to Afghanistan and on to Iran. ये अफ़गानिस्तान की तरफ लेकर जाते हैं और उसके बाद आगे ईरान की तरफ. क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है. व्हाट इज़ लैंड लॉक्ड? लैंड लॉक्ड कंट्री वो होता है विच डज़ नॉट शेयर एनी कोस्ट, यानी उसकी चारों तरफ लैंड है. डिफरेंट कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान के चारों तरफ. पाकिस्तान की जो साउथ साइड है वो अरेबियन सी के साथ टच करती है, लेकिन जो अफ़गानिस्तान की कोई भी साइड किसी भी सी से टच नहीं करती. अब क्या होता है, अब पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है अफ़गानिस्तान को. लोकेशन के हिसाब से पाकिस्तान बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे है
क्योंकि अफ़गानिस्तान ने जितनी भी ट्रेड करनी होती है और सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी होती है, कोस्ट यूज़ करनी पड़ती है उसको, उसके लिए उनको पहले पहले पाकिस्तान आना पड़ता है और फिर पाकिस्तान की कोस्ट लाइन यूज़ करते हुए, पाकिस्तान के जो सी अरेबियन सी की कोस्ट है उसको यूज़ करते हुए वो अपनी ट्रेड को और अपनी ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसको बेनिफिट भी है इस चीज़ का कि पाकिस्तान अर्न करता है इससे, और दूसरा पाकिस्तान की अहमियत भी अफ़गानिस्तान के लिए ज़्यादा हो जाती है। सेंट्रल एशिया एंड इवन यूरोप, ये पासिस जो हैं वो सेंट्रल एशिया की तरफ भी लीड करते हैं और इवन आगे यूरोप तक लेकर जाते हैं। इन द नॉर्थ द हाई हंजराब पास, नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं उसमें क्या है, हाई हंजराब पास। हंजराब पास इट्स हाइट इज़ 4700 मीटर्स, इट लीड्स टू चाइना। ये पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर है, सस्त बॉर्डर पर है और इसका नाम है हंजराब पास। इट लीड्स टू चाइना, इट्स हाइट इज़ 4700 meters. It's important point. You will make fill in the blank. You'll make fill in the blank of this this point. You can also write, make it a short question. Let's see the next, the map. Students, इस map में you will see the boundaries of Pakistan. This dotted area is desert. This is east of Pakistan and this border is being shared with India. इस साइड पे सारा क्या है, इंडिया, इंडिया। इस साइड पे क्या है, अफ़गानिस्तान। ये वेस्ट है, इधर क्या है, ईरान, ठीक है। ये है अरेबियन सी और इस तरफ चाइना। अब आप देख सकते हैं कि जो ईस्ट वाली साइड है उसमें ज़्यादातर आपको डेजर्ट, डॉटेड एरिया डेजर्ट्स है। एक ये है, ये भी आपको डॉटेड एरिया नज़र आ रहा है। ये वेस्ट में भी डेजर्ट्स, आपकी बुक में भी मेंशन है कि वेस्ट साइड पे जो पाकिस्तान की बाउंड्री बन रही है ईरान के साथ, उसमें डेजर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोकेट कर रहे हैं। ईस्ट में भी बहुत सारे डेजर्ट्स हैं और जो नॉर्दर्न साइड है और नॉर्थ वेस्ट एरिया है वहाँ पे यू कैन सी द माउंटेन्स ओवर देयर। अब यहाँ पे देखें, ये टोबा काकर रेंज है और ये इधर हिमालय, कराकरम और हिंदुकुश रेंज है। हिंदुकुश ये नहीं है कि यहाँ पे शुरू हुई और इधर ही ख़त्म होगी, ये आगे भी स्प्रेड करती है और ये बाउंड्री बनाती है उसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ। बस थोड़ा सा प्लेन एरिया है पाकिस्तान का इंडिया के साथ, जो कि पंजाब की लैंड है और ये प्लेन्स हैं जो कि इंडिया के साथ शेयर होते हैं। Again, this is the map showing South Asian countries. This map shows the South Asian countries in alphabetical order. Alphabetical order means according to the alphabets like A, B, C, D in sequence. So Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is an island. You can see that the patch of land that is showing Sri Lanka, it is surrounded by water. The land mass which is surrounded by water is called island. So Sri Lanka is an island, and Maldives, there are some pieces of land shown on the map. These pieces means all these are islands. So Maldives is the country of islands. There are almost 1200 islands in Maldives. So these 7 countries written in our book are called South Asian countries. These are also SAARC countries. SAARC. What is SAARC? SAARC is an organization which is formed by these countries for the welfare of the states.
So all these countries are member of SAARC, and in 2007 Afghanistan was also added to, or Afghanistan was also made the member of SAARC. Here is info given along your text on the book. Here are some interesting statistics about South Asia. Country area information is given. You will memorize it. For the objective, you can also make MCQs and fill in the blanks out of these. I have prepared a table to show you country and area. This way, Pakistan, you can see that I have written two areas over here. इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान का जो लैंड एरिया है वो है 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर. दिस वन. If we do not include बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर, अगर हम आज़ाद कश्मीर और बल्तिस्तान को ऐड ना करें तो पाकिस्तान की जो लैंड एरिया है वो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर है. बट इफ़ वी इंक्लूड बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर तो फिर पाकिस्तान का जो एरिया है वो ये होगा. ठीक है. बाकी कंट्रीज़ के भी आपने एरियाज़ के MCQs प्रिपेयर कर लेने हैं और इनको अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लेना है, क्योंकि जो सोशल स्टडीज़ होती हैं उसमें जो फिगर्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. अगेन दिस इज़ द मैप. इट इज़ अ रिलीफ मैप of the subcontinent. It is showing the height of different areas from sea level. It is also showing different rivers, seas, oceans, mountains. This is called key of the map. Different colors are used to show the height of land. For example, the green areas show the height up to 300 मीटर्स. जो ग्रीन एरियाज़ हैं ये प्लेन्स हैं और ये सी से 300 मीटर्स तक जो है वो हाई हैं. आप इसमें देख सकते हैं डॉटेड एरियाज़ भी हैं. दीज आर शोइंग डेजर्ट्स. दिस इंडिकेट द डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब डेजर्ट्स आर ऑल्सो शोन ग्रीन ऑन सम प्लेसेस. इसकी रीज़न ये है कि इनकी हाइट वहाँ पर 300 या बिलो 300 है, क्योंकि ये कलर्स तो उन्होंने हाइट के हिसाब से यूज़ किए हुए हैं ना मैप में. तो अगर लेकिन डॉट्स जो हैं वो डेजर्ट को शो कर रहे हैं और ये जो ग्रीन कलर है ये इनकी हाइट को शो कर रहे हैं. उसके ऊपर ये ब्राउन कलर आप देख रहे हैं. ब्राउन में भी ये येलो शेड है. इसमें हाइट ज़रा कम है. जो ब्राउन है वो थोड़ी उससे भी ज़्यादा है. इवन जो वाइट शेड्स हैं वो मैक्सिमम हाइट को शो कर रहे होते हैं, जैसे कि 9,000 8,000 तक जो हाइट है वो उसको शो कर रहे होते हैं. This is a relief map of the subcontinent which we have studied just now. A relief map shows usually by means of different colors the height of the land above sea level. इसमें हमें ये बताया जाता है कि sea level से कितनी हाइट है different areas की. It also shows rivers and lakes and other geographical features. You can see that the northern parts of the subcontinent are very high. आपने देखा होगा कि जो नॉर्दर्न हैं, जो माउंटेन एरियाज़ हैं वो ज़्यादा हाई हैं, अप टू ऑलमोस्ट 9,000 मीटर्स. लैंड बिलो 300 मीटर्स इज़ कलर्ड ग्रीन. यही चीज़ मैंने आपको पहले शेयर की है. इज़ कलर्ड ग्रीन एंड दिस इज़ यूजुअली द मोस्ट फर्टाइल एरिया.
सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया, फर्टाइल मीन्स द एरिया द लैंड विच इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अच्छी यूज़फुल लैंड होती है, फर्टाइल होती है, जिसमें मिनरल्स बैलेंस्ड होती हैं, जिसमें वाटर सप्लाई प्रॉपर होती है, दैट इज़ कॉल्ड फर्टाइल लैंड। तो ये जो फर्टाइल लैंड है वो ग्रीन एरियाज़ के साथ शो की गई है और इसकी हाइट जो है वो 300 मीटर्स, बिलो 300 मीटर्स है। बिकॉज देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स, डेजर्ट्स आर ऑल्सो कलर्ड ग्रीन बिकॉज दे आर यूजली बिलो 300 मीटर्स इन हाइट। डेजर्ट्स की हाइट जो है वो ग्रीन कलर के साथ शो की गई है बिकॉज दे आर यूजली बिलो 300 मीटर्स, बट दे हैव ब्राउन डॉट्स, लेकिन उनके अंदर डॉट्स ड्रॉ कर दिए गए टू शो दैट दे आर ऑफ नो यूज़ फॉर फार्मिंग, कि वहाँ पर फार्मिंग नहीं है, इसलिए उनके अंदर डॉट्स ड्रॉ कर दिए गए। In this passage, we will read about different rivers of India. Most of the water in northern part of the subcontinent comes from the two great river systems, the Indus and the Ganges. Indus River flows in Pakistan. It is the largest river of Pakistan. It starts from Himalayas and finally it enters into Arabian Sea. So this river passes through whole the country. पूरे कंट्री में से ये गुजरता है रिवर। हिमालय फ्रॉम द इन द नॉर्थ साइड, नॉर्थ में हिमालयस हैं, वहाँ से ये स्टार्ट होता है और वहाँ से चलता हुआ पूरे पाकिस्तान के अंदर से गुजरता हुआ पंजाब में जो रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं पंजाब की उनको ज्वाइन करता हुआ आगे फाइनली ये आकर अपना डेल्टा बनाता है कराची में, सिंध में, और वहाँ पर ये आके उसमें सी में गिर जाता है। और रिवर गैंजेस जो है इसी तरह से जैसे हमारा पाकिस्तान का मेन रिवर इंडस है, इसी तरह से जो इंडिया है उसका मेन रिवर गैंजेस है। द वैली ऑफ द रिवर गैंजेस इज़ मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया। द लैंड इज़ लो लाइंग एंड देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। लैंड का जो लेवल है वो निचला है, डाउन है इसमें, और फ्लैट लैंड है और डाउन है, और वहाँ पर प्लेंटी मीन्स ए लॉट ऑफ वाटर, मच वाटर फॉर इरीगेशन। इरीगेशन होता है टू वाटर द क्रॉप्स, जो क्रॉप्स को वाटर करने का एक पूरा सिस्टम बना हुआ होता है जिसमें रिवर्स में से जो कैनाल्स हैं वो बनाई जाती हैं और फिर कैनाल्स में से आगे छोटे वाटर वे बनाए जाते हैं ताकि वो फील्ड्स तक वाटर लेके जाएं। इस सारे सिस्टम को इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। This is where most of India's agriculture takes place. So it's very important point. You can be asked a question that in which area most of India's agriculture takes place. Its answer is the valley of the river Ganges. The river Ganges enters the Bay of Bengal. Students, you know the river Indus enters Arabian Sea while the river Ganges enters the Bay of Bengal. जो रिवर इंडस है पाकिस्तान में वो हिमालय से शुरू होता है नॉर्थ से और फाइनली अरेबियन सी में गिरता है, और इसी तरह से जो रिवर गैंजेस है इंडिया में वो किस में गिरता है, बे ऑफ बंगाल में, थ्रू अ ह्यूज डेल्टा। व्हाट इज़ डेल्टा? डेल्टा इज़ द माउथ ऑफ रिवर। डेल्टा वो जगह होती है जहाँ पर एक रिवर सी के साथ या किसी बड़ी वाटर बॉडी के साथ मिक्स हो रहा होता है। वहाँ पे मिक्स होने से होते हुए क्या होता है कि पीछे से एक रिवर फ्लो होता हुआ आ रहा होता है, लेकिन सी के पास आके उसकी डिफरेंट ब्रांचेस बन जाती हैं। उस प्लेस को डेल्टा कहते हैं। अ ह्यूज डेल्टा इन विच द रिवर्स आर चेंजिंग देयर कोर्स ऑल टाइम। डेल्टा में बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं रिवर्स की। मच ऑफ दिस डेल्टा इज़ इन बांग्लादेश। इसका जो डेल्टा है रिवर गैंजेस का वो कहाँ पर है, बांग्लादेश में। द लो लाइंग कंट्री साइड, काफ़ी लेवल इसका लो है, लैंड इसकी लो है। फ्लड्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और यहाँ पर फ्लड्स के बहुत चांसेस रहते हैं, साल में बहुत दफ़ा यहाँ पर फ्लड होता है। व्हेन स्टॉर्म्स हिट द कोस्ट इन लेट समर, समर में जब स्टॉर्म्स होते हैं सी में तो उससे बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा
फ्लडिंग हो जाती है। डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स, जिससे बांग्लादेश का बहुत लॉस होता है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और बहुत सारे जो एनिमल्स और पीपल्स हैं उनका भी लाइफ लॉस होता है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ डेल्टा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सी यहाँ पे स्कैटर्ड है और डिफरेंट इसके जो वाटरवेज हैं, सॉरी, डिफरेंट वाटरवेज हैं। देखिए यहाँ पे ये ऐसे ये डिवाइड होता, ट्विस्ट होता होता, टर्न होता, ब्रांच आउट होता, ये जाकर किस में गिरता है, आगे किसी बड़ी वाटर बॉडी में शामिल हो जाता है। This is info given at the side of your text. Sub. Sub is a Latin word meaning a smaller body of, smaller part of, किसी चीज़ का छोटा हिस्सा, और lesser या कम. Why do you think the Indian subcontinent is called this? इंडियन सबकॉन्टिनेंट को सबकॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? Let's see its reason. Why is India called the subcontinent? India is often called a subcontinent because it is a distinct landmass, not just a country. एक कंट्री तो छोटा होता है, लेकिन जो इंडिया है वो इतना छोटा नहीं है। अब वाला इंडिया नहीं, ये पहले वाले इंडिया की बात हो रही है, जब अभी सब एरियाज़ इकट्ठे हुए करते थे, उस वक़्त की बात हो रही है कि इसको, ये एक डिस्टिंक्ट लैंडमास है, नॉट जस्ट अ कंट्री। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं कॉन्टिनेंट्स के, और इट मीन्स के ये सब कॉन्टिनेंट मीन्स कि ये कॉन्टिनेंट का एक छोटा पार्ट है। Number 2, sub means smaller part of. Number 3, India is the smaller part of the continent of Asia. That's why it is called subcontinent. Which countries constitute the subcontinent? Let's see कि subcontinent में countries कौन से शामिल हैं। subcontinent में वो सारे countries शामिल हैं जो सार्क के members हैं। सार्क मैंने आपको पीछे बताया है कि सार्क क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन ये 7 कंट्रीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज़ हैं, इनके वेलफेयर के लिए बनाई गई है। तो इस सार्क शॉर्ट फॉर्म है इसकी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब जितने भी सार्क के मेंबर्स हैं वो सब सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हैं। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव शामिल हैं। This group of countries are combined together to be called Indian subcontinent, as once in the history they were a part of India. अभी तो आपको ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज नज़र आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। लेकिन हिस्ट्री में अगर हम बहुत पीछे जाएं तो एक ऐसा वक्त था कि जब ये कंबाइन होते थे, तो इसलिए इनको जो है वो सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, और सब कॉन्टिनेंट ये बनाते हैं मिलकर। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेसन. Listen the lecture carefully.